Good morning, everyone. This is Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, I am here in front of you for the explanation of lesson 11, and the name of the lesson is the past tense. So, in today's video explanation, you will see the explanation of past tense. So, let's see. I am explaining all the topics of English grammar. In my last video, I have explained lesson 10 and that was about the present tense, and in today's video, I will explain you the past tense. So first of all, I want to say, and I am hoping that the videos which I am providing you through YouTube links, you all are watching the video and you all are getting the explanation of the video so that you are able to understand the topic well. Okay, so to understand each and every topic, you have to see the whole video thoroughly. So in today's video, I will explain you about past tense. So what I have explained in my previous video, you have to watch the previous video also to understand this topic well. Because in my previous video, I have explained all about tense, what is tense. I have explained how many types of tense are there. I have explained how many forms does each tense contain. I have explained how you can form sentences of present tense, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. So everything about present tense I have explained in that video, and in today's video I will explain you all about the past tense. So let's get started. So to understand what is past tense, okay, first of all we'll understand that what is past tense. Let's see a proper definition. Here it is written, the past tense of a verb refers to a state, action or an event that happened in the past. So past tense किसको रेफर करता है, संबोधित करता है? एक स्टेट मीन्स एक स्थिति को रेफर करता है, एक्शन एक क्रिया को रेफर करता है, इवेंट एक ऐसी घटना को रेफर करता है दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो आपके बीते हुए समय में, आपके गुजरे हुए समय में हो चुकी है. ओके, सो वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो भी आपके बीते हुए कल में हुआ है, दैट विल कम अंडर द पास्ट टेंस. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. Here it is written, he was an outstanding athlete. वो एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था. So how we can recognize that it is past tense? By the form of the verb only. As I have told many times in my previous video also, and now also I am telling you that by the form of the verb and by the helping verb of a sentence, you will be able to understand that which tense is there in the sentence. Okay, so was मीन्स होता है था, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. इसका मतलब ये आपका टेंस होगा पास्ट. नेक्स्ट हियर इट इज रिटन, शी केम फर्स्ट इन द क्लास. वो कक्षा में प्रथम आई. नाउ हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट इज पास्ट टेंस? हियर इट इज रिटन केम, एंड केम इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ कम. सो सेकेंड फॉर्म वी ऑलवेज यूज इन द पास्ट टेंस. हम कभी भी प्रेजेंट में सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. So before moving forward, let's see how many forms does past tense contain. कितनी forms past tense की होती हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि हर tense की same forms रहती हैं and the same forms are there of past tense also. First is past indefinite, second past continuous, third past perfect and fourth past perfect continuous. So in today's video, I will explain each form thoroughly. I will explain the formulas of each tense and I will explain that how can you form a sentence using each tense. Okay, so let's see the next one. So our next topic is past indefinite tense, which is also called simple past tense. Past indefinite tense को हम simple past tense भी बोलते हैं. What is the proper definition? It refers to the actions that happened in the past or were regularly done in the past. ये किनको रेफर करता है? ऐसे actions को, ऐसी क्रियाओं को रेफर करता है जो पास्ट में हो चुकी हैं और पास्ट में रेगुलर बेसिस पर होती थी. एज आई हैव एक्सप्लेन कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो हैबिचुअल थिंग्स बताता है. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो टेल्स अबाउट हैबिचुअल थिंग्स, बट द हैबिचुअल थिंग्स ऑफ पास्ट, जो आप पुराने समय में किया करते थे. ओके, सो जो भी आपकी डेली बेसिस पर पास्ट टेंस में जो भी आपके पास्ट में जो भी डेली बेसिस पर आपके एक्शंस होते थे वो आपके सिंपल पास्ट में आएंगे, एंड जो भी एक्शन आपके पास्ट में हो चुका है वो भी आपका सिंपल पास्ट में आएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. हियर इट इज रिटन, दे ऑलवेज वर्क्ड सिंसियरली. वे हमेशा सिंसियरली काम करते थे. सो हियर वी कैन रिकॉग्नाइज बाय द फॉर्म ओनली.
by the form of the verb only. Here it is written worked. Worked is the second form, so we have understood कि ये हमारा simple past tense है, because in the formation of simple past tense we use second form of verb in positive sentences. Second, it is written she completed the essay. उसने अपना निबंध पूरा कर लिया है. So by completed only we can understand that it is simple past tense, because in simple past tense we use subject plus second form of verb plus object. So subject is she, completed second form, and the essay is object. So that's all about simple past tense. So let's see how can we form simple past tense sentence. So the formulas of simple past tense I'll explain you. So now let's see how you can form a sentence in simple past tense. As I have already explained that there are three types of sentences, that is affirmative, negative and interrogative. Positive is also called affirmative, negative is called negative only, and interrogative is called, in interrogative we ask questions. So let's see the formula of positive sentence. Here subject plus verb second form plus object. Okay, no helping verb will be there. Only subject plus verb second form plus object plus full stop. Let's see the next formula, which is of negative. Here it is subject plus didn't. Only one helping verb will be there in your past indefinite tense, that is did. Did will come with all the subjects. So जब आप उसे not के साथ आप जोड़ देंगे तो contraction में आपका बन जाता है didn't. ओके, कॉन्ट्रैक्शंस में क्या करते हैं हम, जब दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं सो कुछ लेटर जो होते हैं वो ओमिट हो जाते हैं, बीच से गायब हो जाते हैं. सो हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स बन जाता है, दैट इज डिडंट, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. डिड ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव है, सो डिड से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज फॉर्मूलाज. फर्स्ट इट इज रिटन ही मैट हिज वाइफ 6 years ago. वो अपनी वाइफ से 6 साल पहले मिला. मीट इज द फर्स्ट फॉर्म एंड मैट इज द सेकेंड फॉर्म. सो सेकेंड फॉर्म मीन्स इट इज पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सेकेंड इज दे वॉच्ड अ मूवी येस्टरडे. वॉच्ड, वॉच इज द फर्स्ट फॉर्म एंड वॉच्ड इज द सेकेंड फॉर्म. उन्होंने कल एक मूवी देखी. नेक्स्ट इज यू वेंट टू द बेड अर्ली. तुम कल जल्दी सोने चली गई थी. गो मीन्स होता है जाना एंड वेंट इज द सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट इज शी डिडंट स्टडी इन द लाइब्रेरी. डिड नॉट स्टडी इन द लाइब्रेरी. उसने लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं की. सो डिड नॉट से पता चल रहा है इट इज नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट इज दे हैड डिनर लास्ट नाइट. हैड, हैज एंड हैव आपका ऑक्सिलरीज होता है. व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू द मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज देन आई विल टेल यू. सो जो आपका हैज होता है उसका पास्ट टेंस हैड बन जाता है. तो उन्होंने कल रात डिनर खाया, मीन्स कल रात का खाना खाया. नेक्स्ट इज द पुलिस डिडंट फाइंड एनी क्लूज. पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिले. डिड नॉट. By the did only you are able to understand that it is negative sentence of simple past tense. Next is I became a teacher 2 years ago. मैं 2 साल पहले एक शिक्षक बना. Became is the second form. Next is he bought a new car last week. उन्होंने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी. Buy is the first form and second form is bought. So bought से पता चल रहा है it is positive sentence of simple past tense. Next is we studied very hard last night. हमने कल रात बहुत मेहनत से पढ़ाई की. नेक्स्ट इज आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर. मैंने पिछले साल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन मीन्स स्नातक की परीक्षा पास की. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. सो व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यू मीन्स जारी रहना एंड कंटिन्यू से बना है कॉन्टिन्यूअस, मीन्स आपकी वर्ब जारी है. अब कंटिन्यू मीन्स जारी है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट दैट मीन्स जारी है, दैट मीन्स कंटिन्यू है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट दैट मीन्स आपके गुजरे हुए समय में जारी थी एक समय पर. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन. हियर इट इज रिटन इट इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट. सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ पर करते हैं, एक ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो आपके बीते हुए समय में इन द पास्ट कंटिन्यू था कुछ समय के लिए. लाइक आई वॉज वॉकिंग इन माई हाउस. मैं अपने घर में वॉक कर रही थी. सो पास्ट में वो कंटिन्यू था आपका. ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. हियर इट इज रिटन दे वर वॉचिंग द मैच. वे मैच देख रहे थे एंड वर प्लस वॉचिंग, बिकॉज वॉट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज वॉज एंड वर, एंड मेन वर्ब विल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing. सो बाय द हेल्पिंग वर्ब एंड बाय द मेन वर्ब वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आपका क्या रहता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की जो मेन वर्ब होती है
What is the main verb? Main verb is watching. वो same रहेगी in present tense also and in past tense also. But what will change? The helping verb will change. In present continuous, is am are will be there, and in past continuous, was were will be there according to the subject. So we met, देख रहे थे. Next is I was helping my mother. मैं अपनी मम्मी की help कर रहा था. So helping is same है, यहाँ लिखा है, जो कि आपका प्रेजेंट में भी आता है, बट बाय वॉज ओनली वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस में अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी. मीन्स पास्ट में जो एक्शन है वो कंटिन्यू था. सो आई होप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज क्लियर टू एवरीवन. In my next topic, I will explain you the formulas of past continuous tense, that how can you form a past continuous tense, that how can you form a sentence in past continuous tense. So let's see the next one. So now let's see the formulas of past continuous tense. How we can form past continuous tense. So first we will see the formula of positive sentences. So here it is written subject plus was were. Was were is the helping verb of past continuous tense plus verb first form plus ing plus object, which is not written here but it is obvious कि object रहता है, then plus full stop. Okay, subject was were plus verb first form plus ing plus object plus full stop. She was cooking all morning. She is subject. According to she we have used was, which is helping verb, cooking verb first form plus ing, all morning object. Let's see the next one, which is negative sentence. Here it is written subject was were plus not plus verb first form plus ing and plus object. So the sentence is she was not sleeping when he came home. She was not sleeping. She subject है, was helping verb है, not means negative sentence है, नहीं सो रही थी. when he came home, जब वो घर आया वह नहीं सो रही थी. Next is interrogative sentence. So it will start with the helping verb. So we have to use was were according to the subject, then verb first form plus ing and then object. So the sentence will be was she sleeping when he came home? क्या वो सो रही थी जब वह घर आया? So was आपका helping verb हो गया, she subject, then sleeping verb first form plus ing and then remaining is object. Okay, so let's see the examples of it. First example, here it is written while I was washing the dishes I heard the loud noise. जब मैं बर्तन मतलब डिशेस धो रहा था, बर्तन धो रही थी, तब मैंने एक बहुत तेज आवाज़ सुनी. सो व्हाट इट इज शोइंग टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस, यानी एक समय पर जो दो एक्शंस एक साथ चल रहे हैं, जब मैं धो रही थी उसी समय पर मैंने सुनी, यानी दोनों एक्शन जो हैं वो आपके साथ साथ चल रहे थे. मैं धो रही थी और धोते समय ही मैंने एक साउंड सुना एंड दोनों एक्शंस आपके पास्ट में हुए. नेक्स्ट इज आई वॉज लुकिंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे. कल पूरे दिन मैं गार्डन की देखभाल कर रही थी, कल पूरे दिन मैं गार्डन में काम कर रही थी. आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे येस्टरडे. सो इट इज शोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. तो इससे पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर समय पर पास्ट में कोई व्यक्ति क्या कर रहा था. मैं पूरा दिन क्या कर रही थी? बगीचे में काम कर रही थी. नेक्स्ट इज आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार. मैं ड्राइविंग करके वर्क के लिए मतलब अपने काम पर जा रही थी जब मेरी कार जो थी वो क्रैश मीन्स होता है टकरा गई थी. व्हाट इट इज शोइंग टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, यानी व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्शन एंड एनी इंटरप्शन वाज देयर, बीच में कोई बाधा आ गई थी. आई वाज ड्राइविंग और तब मेरी कार जो है वो क्रैश हो गई थी, मीन्स ड्राइव के बीच में बाधा आ गई थी, एक इंटरप्शन था. नेक्स्ट इज ही वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास. वो कक्षा में हमेशा शिकायतें करता रहता है. सो इट इज डिस्क्राइबिंग द रेपिटेशन एंड इरिटेशन, यानी कोई जो आपका एक्शन है दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड विच इज इरिटेटिंग ऑल्सो. सो दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट टेंस. सो लेट्स सी. So what is past perfect tense? Let's see a definition. It is used to talk about an action that had taken place in the past before another action that also happened in the past. Means past में आपके दोनों action चल रहे थे. ओके, टू एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम. पास्ट में आपके दो एक्शन चल रहे थे, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है वो उस एक्शन के बारे में बात कर रहा है जो एक्शन पहले चल रहा था. लाइक आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज राइटिंग. सो दोनों में मैं एक काम पहले कर रही थी. ओके, सो जो भी काम मैं पहले कर रही थी व्हेन इट इज़ रीडिंग, या ये भी हो सकता है दैट इज़ राइटिंग, वो काम आपका जो वो वर्ब होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में आएगा. मीन्स टू वर्ब्स वर गोइंग ऑन टुगेदर एंड वन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड बिफोर. तो पास्ट परफेक्ट उसी एक्शन को रेफर करता है जो एक्शन पहले हुआ है.
So by the example you will be able to understand. Here it is written the train had left the station by the time we arrived. यानी ट्रेन जो थी वो स्टेशन से चली गई थी जब तक कि हम स्टेशन पर आए. तो पहला एक्शन कौन सा था, हमारे जाने से पहले ही ट्रेन चली गई थी. दैट मीन्स द एक्शन विच हैपेंड फर्स्ट दैट वाज द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन चली गई थी. तो जो ट्रेन चली गई वो हमारा किस में आया, वो आया पास्ट परफेक्ट में. दैट्स वाई वी हैव रिटन हैड लेफ्ट. और उसके बाद सेकेंड आ गया हमारा past indefinite में which is arrived. Next it is written they had organized a fancy dress party. तो हम नॉर्मल भी बता सकते हैं when any action has happened in the past, जो पूरा हो चुका है वो हम उसके बारे में भी बता सकते हैं. तो उन्होंने क्या किया, एक फैंसी ड्रेस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया. क्लियर है. पास्ट परफेक्ट टेंस शोज अबाउट द एक्शन. इन पास्ट 2 एक्शंस हैपेंड एंड द एक्शन विच हैज कंप्लीटेड बिफोर, जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस को रेफर, उस एक्शन को रेफर करता है. सो लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस? Here it is written she had cleaned the room when I got home yesterday. वो कमरा साफ कर चुकी थी जब मैं घर में आया. सो द एक्शन विच हैड हैपेंड फर्स्ट दैट वाज, वो कमरा साफ कर चुकी थी और मैं उसके बाद घर में आया. सो जो एक्शन हमारा पहले हुआ उसके साथ हमने हैड क्लीन्ड लगाया, उसको हमने पास्ट परफेक्ट में रखा. क्लियर है. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंस हाउ वी कैन फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस थर्ड प्लस हैड ही रहता है. हेल्पिंग वर्ब इज हैड with all the subject, then third form of verb which is also called past participle, then object. Okay, so the sentence will be she had written an essay. She is subject, had helping verb, written is the third form of verb, and essay is object. Let's see the negative one. Here it is written subject, had, not, verb third form and plus object. आपका object आ गया. So example will be she had not written an essay. She subject, had helping verb, not, written third form of verb, and essay object. She had not written an essay. Next is interrogative sentence. Here it is written had, subject, verb third form plus object plus question mark. So the sentence will be had she written an essay. क्या उसने एक ऐसे लिखा. had आपका helping verb हो गया, she subject, written third form हो गया, essay हो गया आपका object. So let's see the examples of it. The first one here it is written he had drawn the sketch of a map. उसने क्या ड्रॉ किया, एक मैप का स्केच बनाया, यानी जो नक्शा होता है उसका एक खाका बनाया. had drawn, had थर्ड फॉर्म है एंड drawn, सॉरी had helping verb है एंड drawn थर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट इज द मैच हैड फिनिश्ड व्हेन आई रीच द स्टेडियम. जब मैं स्टेडियम पहुंचा मैच पहले ही फिनिश हो गया था. सो कौन सा एक्शन पहले हुआ, मैच पहले फिनिश हुआ. सो हमने उस एक्शन को हैड फिनिश्ड में रखा एंड सेकेंड हमारा किस में आया, सिंपल पास्ट में, जिसमें हमने ओनली सेकेंड फॉर्म का यूज किया है. नेक्स्ट इज हैड शी लिव्ड इन दिस हाउस. क्या वो इस घर में रहती है. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सिंपल पास्ट सिंपल सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हो जहां पर आप बताते हैं कि पास्ट में ऐसा हो चुका था. ओके क्या वो इस घर में रह चुकी थी. नेक्स्ट इज आई हैड नॉट प्लांटेड द फ्लावर्स. मैंने फ्लावर्स प्लांटेड मीन्स नहीं बोए थे. नेक्स्ट इज जॉन हैड ट्रेवल्ड टू वेनिस अंटिल लास्ट मंथ. पिछले हफ्ते तक जो जॉन है उसने ट्रैवल किया था, यात्रा की थी, कहाँ की, वेनिस की. नेक्स्ट इज दे हैड ईटन मैंगोज. उन्होंने आम खा लिए. नेक्स्ट इज वे आम खा चुके थे. नेक्स्ट इज द हीरो हैड नॉट फॉट विद कैनिबल्स. जो हीरो है उसने लड़ाई नहीं की थी, किसके साथ, कैनिबल्स के साथ. नेक्स्ट इज ही हैड रीड हिज फेवरेट बुक बिफोर यस्टरडे. वो कल से पहले ही अपनी फेवरेट किताब पढ़ चुका था. नेक्स्ट इज द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हार्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड. प्लेयर्स जो थे उन्होंने पहले ही अपना दिल छोटा कर लिया था, मीन्स अपना हौसला हार लिया था इससे पहले कि मैच फिनिश होता. तो पहला एक्शन कौन से कंप्लीट हुआ कि उन्होंने अपना दिल छोटा कर लिया था, मीन्स अपना हौसला खो दिया था. सो वी हैव कैप्ट इन दैट पास्ट परफेक्ट हैड लॉस्ट हार्ट. उन्होंने अपना दिल छोटा कर लिया था. देन नेक्स्ट इज आई हैड ड्राफ्टेड माई प्लान बिफोर आई स्टार्टेड माई वर्क. मैंने जो अपना काम शुरू करने से पहले अपना जो प्लान था वो उसका ड्राफ्ट बना लिया था, मीन्स बनाकर उसको रेडी कर लिया था. ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्मूलाज. इन नेक्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन यू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो लेट्स सी व्हाट past perfect continuous tense shows. Let's see the definition. First of all, it refers to an action that took place in the past and continued until a specific time in the past.
सो व्हाट हैपन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो आपका एक्शन होता है वो पास्ट में ही स्टार्ट होता है और पास्ट में ही एक स्पेसिफिक टाइम पर उसका एंड हो जाता है. मीन्स द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज बीन completed in the past only. So let's see the examples. Here it is written the first one. She had been studying in Pune for the last 5 years. वह पिछले 5 सालों से पुणे में पढ़ रही थी. So पिछले 5 साल पहले उसने पढ़ना स्टार्ट किया था and after 5 years she has completed the study from Pune. She has completed the study from Pune. नेक्स्ट इज शी हैड बीन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स फॉर मैनी ईयर्स. वह पिछले कुछ सालों से जानवरों का जो व्यवहार है उसके बारे में पढ़ रही थी. तो पिछले कुछ साल पहले उसने पढ़ना शुरू किया और कुछ साल पहले पढ़ने के बाद उसे कंप्लीट कर लिया. सो थ्रू द एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज दैट एक्शन विच हैज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट ओनली बट एट अ स्पेसिफिक टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होता है, उस टाइम पर वो फिनिश होता है. सो इन नेक्स्ट टॉपिक विल see the formulas of past perfect continuous tense. So let's see the examples of past perfect continuous tense. So what does past perfect continuous tense shows? We'll understand through the formula only. First I will tell you the formula of positive sentences. Subject, helping verb which is had been, verb first form plus ing and then plus object. So the sentence will be they had been playing tennis. वो टेनिस खेल रहे थे. अब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया भी होता है कि आपका एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा और एक पर्टिकुलर टाइम नहीं भी दिया होता है. नेक्स्ट इज नेगेटिव. शी हैड नॉट बीन प्लेइंग टेनिस. वो टेनिस नहीं खेल रहे थे. नेक्स्ट इज हैड शी बीन प्लेइंग टेनिस. दैट विल बी हैड, सब्जेक्ट, बीन and then verb first form plus ing plus object plus question mark. So when question interrogative sentence is there, so हमारा जो helping verb होता है वो दोनों subject के मतलब subject जो होता है वो helping verb के बीच में आ जाता है. Means had, subject, then been. Okay, and the same thing will happen in the sentence also. Had they been playing tennis. क्या वो टेनिस खेल रहे थे. Now see the sentences. The boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. यानी जब बारिश होने लगी लगभग 1 घंटे तक जो लड़का था वो सॉकर खेल रहा था. So here what it is showing to describe a past action already started and continued up to another action or time in the past. एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जो ऑलरेडी स्टार्ट था, कंटिन्यू था और उसके साथ ही दूसरा एक्शन जो था वो भी पास्ट में कंटिन्यू था. मीन्स एक एक्शन ऑलरेडी चल रहा था और उसी के साथ दूसरा एक्शन भी कंटिन्यू था. नेक्स्ट इट इज शोइंग रिचर्ड नीडेड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months. रिचर्ड को जरूरत थी छुट्टी की क्योंकि वो पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था. ओके, सो हेयर व्हाट इट इज शोइंग टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट. तो यहाँ पर एक ड्यूरेशन दिखा दी फॉर 6 months, यानी एक अवधि दिखा दी कि कोई एक्शन कितने अवधि से चला था और कब वो पूरा हुआ. नेक्स्ट इज ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग. वो थक चुका था बिकॉज उसने जॉगिंग की थी. टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट. सो कोई भी एक्शन जो है उसका जो कारण है यहाँ पर वो पता चल रहा है. वाई ही वॉज टायर्ड बिकॉज उसने जॉगिंग की थी लंबे समय तक. सो दैट वॉज ऑल अबाउट पास्ट टेंस. आई हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ पास्ट टेंस, फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस. I have explained the definition of each type of past tense, past indefinite, past continuous, past perfect continuous. I have explained the formulas also. I hope कि आप सभी को समझ में आया होगा पूरा चैप्टर. If still any query is there regarding the explanation, so that you can ask in the Zoom meeting. So I'll meet you in the another video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone.